बड़े लगते हैं। तो कंसल्टेशन ये करना चाहते हैं क्योंकि आपां सही दर्जा अपने कल्चर नूं हेरिटेज नूं मैं समझदा सही दर्जा जो कम्यूनिटी ने पहले लंबे समय तो करता है आपां नूं सही दर्जा नहीं मिलिया। इसे हुण मैं सिंपल जी गल मैं तुहानूं करके दसदा जिद्दां यूरोपियंस पहला इत्थे आया वो पहला तो इत्थे नेटिव्स एबोरिजिनल पीपल दिस इज़ देयर लैंड। जदों यूरोपियंस आया वो अपने नाल लैके आया लैंग्वेज फ्रेंच इंग्लिश बाहरों आईयां बाहरों आके पर दे आर पार्ट ऑफ कैनेडा नाउ व्हिच इज़ गुड राइट but part of Canada English and French are part of Canada they're official languages but Punjabi ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂ نو ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ we don't have a lot of time क्योंकि अगली मीटिंग तो ਅਸੀਂ late ਹੋਏ ਨਾ we have how much time Ramdeep we have we have about 5 to 10 minutes okay well make it if we say 10 minutes I know it's going to take 15 minutes so we have about 15 minutes what I like to hear from you if it's possible is how can we ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ enhance ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ enhance ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਈ what can the federal government do ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਕ ਲੇਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ how can we enhance ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਸਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਿਆਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ whether they're artists whether they're part of cultural groups you know whether they're part of heritage groups and stuff so I think it's important to highlight the good cultural heritage that we have and if there are any issues that you think could be part of that we would really love to hear from you. The other thing we are going to do once we have this feedback from you anyway just be it asga te madke kuch nahi na hona within 3 weeks or 4 weeks we will have a proposal for you from what we have heard from the rest of the country and from yourself. So I would really appreciate it. So we have about now 12 minutes. Yep. And if you can be brief and Ghadar sahab tusi coordinate kar doge if you can be brief right to the point then we can get a lot more views and I'm sorry I wish I had more time but this is the way it works. I apologize in advance. Thank you. बड़ी वधिया गल की थैंक यू जसवीर जी साढ़े MP NDP पार्टी की तरफों जस्ट सॉरी कैनेडा तो और जी गल इन्होंने की है वो गदर पार्टी नाल जुड़ी हुई है वो गदर पार्टी गदरी बाबियां की मूवमेंट जिंदी वजह नाल अज पंजाबी इत्थे सिर कट के चलता रहा है साढ़े पंजाबी जसवीर जी तरह तमाम पोलिटिकल पार्टियां की तरफों रिप्रजेंटेशन करते हुए मैं ऑटवा दे विच बैठे हुए हैं और जिस तरह इन्होंने कहा कि चौथी वड्डी जुबान है कैनेडा की ये बाहरों जिवें दूजियां जुबानां बाहरों आईयां ने ये बाहरों जुबान आई है और इनू भी उन्नी ही अहमियत दी जाए जी डिजर्व करती है। अमनीत जी ने मेरी मुलाकात जी हुई परसों उहदे विच भी असीं इहो गल्लां कीतियां डिस्कस इन्होंने इत्थों तक कहा कि असीं ओंटारियो आर्ट्स काउंसल नूं कैनेडा आर्ट्स काउंसल नूं इन्हां सब नूं असीं प्रपोजल्स बना के देण नूं तैयार हाँ उन्हां नाल मीटिंग्स साडे बंदियां दी कराउण नूं तैयार ने ताकि वो ग्रांट्स देवन साडे आर्टिस्टां नूं पेंटर writer whatever artists all forms ते मैं समझना कि साड़ी खुशनसीबी है कि अज इन्हां दी मौजूदगी दे विच असीं गदरी बाबा दे उस मिशन नूं एक स्टैप अगे लैके जा रहे हैं
चूँकि मैं इन्हों जो इन्होंने बारे स्टडी की है ये इन्ने डायनामिक मैंबर पार्लीमेंट ने ये कहते नहीं है सिर्फ करते भी ने लिहाजा बहुत ब्रीफ अगर किसी के जेन कोई आइडिया आ रहा है अमनीत जी लिख रहे हैं असी लिखिए बाद अमनीत जी नाल भी असी जसवीर जी नाल भी डायरैक्ट भी रिक्वेस्ट कर सकांगे लेकिन अज असी इस कड़ी तो फायदा उठाने होया कुछ सजेशंस बहुत टू द पॉइंट किसी सज्जना के जेन आ रही हैं जरा उठ के दसन ताकि अमनीत जी नोट करें प्लीज़ जी प्लीज़ तुसी अपना परिचय भी करा दो मेरा नाम रणदीप सिंह संधू है जी थोड़ा लास्ट नेम शेयर करदा ते मैं ओंटारियो पीसी पार्टी का कैंडिडेट भी हां ब्रैम्पटन वेस्ट ठीक है लैंग्वेज नॉट एज मच भी जिहदे बारे मैं कह रहा जिहड़ी हैरीटेज है जिवें दैट वर लूजिंग फास्ट क्योंकि जिहड़े अपने न्याणे हुण इत्थे जम रहे हैं उन्हां नूं अबॉर्शनल हिस्टरी जिवें जिवें सैटलर्स आए जिथे जिथे गए उहदे बारे पढ़ते ने वो आपकी बुक्स मेरे अपनी भी बहुत माणमत्या इतिहास है जिहदे बारे उन्होंने टचअप तो करना चाहिए क्योंकि अब जो हैरीटेज नाल कनैक्शन खत्म हो गया तो आई थिंक वी आर अ लॉस्ट कॉज जीरवी साहब मैं खास तौर पर कहांगा फिर मैं मुताल साहब ने कहांगा जीरवी साहब साढ़े बड़े ही सीनियर और बड़े ही काबिल एहतराम इंटलैक्चुअल ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे मैं कहा जेरे मत संत प्लीज सर कोई सजेशन कोई सजेशन देनी मैं चाहवागा 8-10 दिन बाद यही मीटिंग फिर बुला ली जाए ताकि असी सोच के ठोस तजवीज़ा पेश कर सकिए मैं चाहवागा खास तौर पर गदरी बाबिया की यादगार कायम की जाए उन्होंने आज़ादी मूवमेंट बारे जो कुछ भी है वो एस्टेब्लिश हो गए और पंजाबी कल्चर को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है इस बारे ठोस तजवीज़ा मैं सोचता है देयर शुड बी अगेन ए मीटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पंजाबी इंटेलेक्चुअल इतने बुलाए जाए उन्होंने थोड़े तजवीज़ा नहीं है जाए सारे 10 फौरी तौर पर औखा है थैंक यू सर जरूर लिखना तुसी देखिए प्लीज मेरा नाम मुतान मुकिन पहली चीज़ मेरा ख्याल है कि अगर ईमेल के थ्रू फॉलो अप हो सके तो हर एक वक्त मिल सकेगा अपने ख्याल कंपोज करन दा ते गोरा साहब को फॉरवर्ड किया जा सकता है मुख्तसर तौर पर एज पर मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज in whatsoever form, if that can be helped or supported, all the cultural heritage, the literature and the other art forms, some effort in that direction. Meena Chopra ji, please. छोटा सा सजेशन है कि यूथ को हमारी जनरेशन से ज़्यादा इन डिसीजंस में यूथ को इन्वॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनका जो विजन कनाडा का है वो हमारे विजन से फ़र्क है और हमको एक कनाडा चाहिए जो कोहेसिव है तो वो लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या सोचते हैं हेरिटेज के बारे में और उनसे क्या सजेशंस आते हैं हमारी जनरेशन से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो सजेशंस दें बहुत बढ़िया जी मुझे सामी साहब फिर मैं बता चीमा साहब थे रफीक साहब हैं A simple suggestion that, as Abhi Sandhu Sahab also said, that we should somehow, in the fast-acting action, we want to move very fast in the next month or so, that if major Canadian arts councils, heritage councils recognize and include Punjabi specifically for grants towards publication, for art shows and for supporting writers writing in the Punjabi language, because the arts councils give all kinds of support but not specific, not language specific. So because Punjabi is becoming a major dominant language and this will be a way of preserving, so I believe that those councils should be somehow convinced that this is a very wise investment in the community. आखिरी दो सजेशन कोहट साहब का नाम देखिए सी सॉरी 10 हो गया कोहट साहब सॉरी मैं तुम मिस कर गया प्लीज नज़ीर कोहट जी मैं जो मसला जिस पर थोड़ा ध्यान देना मैंने नहीं पता थोड़ी उत्थों तक पहुँच है
या नहीं है, या इस फोरम की पहुँच है या कैनेडा सरकार की पहुँच है या नहीं, पर मैं रिकॉर्ड से लियान वास्ते खड़ा हो गया। गल ये कि पाकिस्तानी पंजाब में पिछले 150 साल तो मदर टंग एजुकेशन ते ऑफिशियली बैन लगा है, अंग्रेज़ों ने लाया सी ते ये सारी अपने रद्दे अमल सी रिएक्शन सी चेलियां वाला में जो शेर सिंह ने उन्होंने हशर किया। उस तो बाद पंजाब में पंजाबी जुबान पर पाबंदी लगी कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੋਰੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੇਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਸਲਿਮ ਪੰਜਾਬ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਦਰ ਟੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ फेडरल गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। मेरी सिर्फ इन्नी सारी अर्ज है कि जो कैनेडा सरकार कुछ कर सकती है, एक ह्यूमैनिटेरियन मसला है, पंजाब की जुबान ख़त्म हो रही है, पंजाबी जुबान के खिलाफ एक्सट्रीम मतलब एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। अगर तुसी ये मसला यूनाइटेड नेशंस लैके जा सकते हो या तुसी इत्थों पाकिस्तान सरकार को कुछ कह सकते हो, इंसानी मसला है। एक जुबान है, कोई 16-17 करोड़ लोगों की जुबान खत्म, मेजॉरिटी के पंजाबी उत्थे रहते हैं, तो ये बारे जगह तुसी कुछ कर सकते हो जी। बलराज जी मसद मैं शायद रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इस गल से मैं डबली जोर देना चाहना कि अज की जी मीटिंग सी वो स्पैसीफिकली गदरी बाबियां की याद के जे असी दूजियां गल्लां करांगे तो वो फिजल आउट हो जाएगा। बेहतर यह है कि इसे परपज लिए एक मीटिंग होर की जाए जिहदे विच जिवें जी भी साहब ने आख्या कि असी पूरी तरह सोच समझ के ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਨ ਦੀ ਸਪਾਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹੱਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, फिर ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। बहुत सोहनी गल है जी। जी प्लीज करना चाह रहे सवाल। Actually that's a very good suggestion। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵਰਬਲ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਮਨੀਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਮੈਂ ਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ written feedback ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ I'll stop with that and so if you can provide ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਈਮੇਲ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ written feedback ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਤੇ I think that's a huge achievement to work together as communities. And I know that we have been working on united front at a community level, at a language level in Vancouver area, and I am very, very happy to see this here also in Brampton, Mississauga, Toronto area. So thank you very much again. I thank you for your time, and मैं अखीर विच ही अपने गदरी बाबियां नूं उन्हां नूं सलाम करदा। उन्हां दी बदौलत आपां अज जो इत्थे निग मार रहे हैं कैनेडा विच, मैं उन्हां दा बड़ा धन्नवादी ते रहणी। थैंक यू।